Zone Ads, World of Local Business Info. చాలా సంతోషపడాలి. మనం పిలవగానేటువంటి మనకి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి రామదాస్ అత్వే గారిని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాలి. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తర్వాత అంత స్థాయి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ రామదాస్ అత్వలని మనం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టవలసిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఆయన దగ్గర సోషల్ జస్టిస్లో దివ్యాంగుల శాఖ కూడా ఆయన దగ్గర ఉండడం మన అందరూ అదృష్టం. ఎందుకంటే చివరిగానే మీ అందరికీ తెలుసు, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, బీసీలకి, మహిళలకి, చివరికి చిన్నపిల్లలకు కూడా కమిషన్స్ ఉన్నాయి. కానీ దివ్యాంగులకు కమిషన్ లేదు. ఆ దివ్యాంగుల హక్కుల కోసం కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి. దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ భారతదేశంలో సుమారుగా 7% మంది దివ్యాంగులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి గ్రామ స్థాయి నుండి కూడా పార్లమెంట్ స్థాయి వరకు ఎలాంటి రాజకీయ రిజర్వేషన్ లేవు, పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ లేవు. గ్రామ సర్పంచ్ లేరు, జడ్పీటీసీ లేరు, ఎంపీటీసీ లేరు. కాబట్టి సోదరులారా, మన మంత్రివర్యులు వచ్చారు. మన మంత్రులతో పాటు మనకి ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి యువార్డ్ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు కూడా నిధులు రావడంలో వాళ్ళు ఏజ్ని వాళ్ళు లిమిట్ పెట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బందులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మన హక్కుల కోసం, మన కమిషన్ కోసం, రాజకీయ రిజర్వేషన్ కోసం, వికలాంగుల కోసం నేషనల్గా ఒక సప్లాన్ ఏర్పాటు చేయాలనే విధంగా ఈరోజు మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ సభ నుంచి ఉద్దేశించి మన మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతారు. తర్వాత అంతకుముందు మసూదన్ రెడ్డి గారు 1 నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా. ఎందుకంటే దివ్యాంగులు అనే వాళ్ళు భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన తర్వాత RPWD యాక్ట్, రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016 ఇచ్చిన తర్వాత రిజర్వేషన్స్ని వీ హ్యావ్ ద రిజర్వేషన్ 3%. నౌ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద 4% జాబ్ రిజర్వేషన్లో. నా ఎడ్యుకేషన్లో 3% ఉన్నది 5% చేశారు. సోదరులారా, మన రిజర్వేషన్ని మన మంత్రి యంగ్ అండ్ డైనमिक लीडर हमारा लीडर है इधर है रामदास अत्वाले जी नायकत्व में, इनका नायकत्व में, आदर्श में हम सभी चलेंगे, सभी करेंगे. दिव्यांगजन की सभी के लिए हेल्प करना. साहब का लिए तो साहब कुछ देना है. हमको कमीशन होना, हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना, मन को सप्लान होना, सभी हमारा मंत्री जी आज से है. मंत्री जी अंडर द सोशल जस्टिस मंत्री जी है ना, आप सभी हमको हेल्प करना. ऐसा हमारा NGOs को ये पूरा हमारा NGOs को एज लिमिट थे सब, सभी की स्पेशल चिल्ड्रन है तो 23 एज लगाया, आई तो हीयरिंग एड है तो 18 लगाया. वो भी इक्वल करना है. सभी के लिए हम तुम्हारा साथ हम ले पूरा दिव्यांग है साहब, हमको हेल्प करना साहब. हमको हेल्प करके दिव्यांग जन की इक्वल राइट्स देना है साहब. इक्वल राइट्स दिया तो हम भी सबके साथ में हम भी एक भाग्यशाली होता साहब. अभी थैंक यू. अभी 1 मिनट यूवर्ड से 1 मिनट बाद मधुसूदन रेड्डी. डॉक्टर रामदास अत्वाले साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑल इंडिया डिसेबल राइट फोरम चेयरमैन कोल्लांगेश्वर राव, NGO friends and the other friends who are on the dais, and the respected my dear Divyang Jan and Patrakaron and other
parents and friends, I am on behalf of UWAD NGOs of Telangana, I am thank Dr. Ramdas ji for giving us an opportunity to meet him. And today, just now my friend said, we are having a 7% of the population are disabled in our country. Approximately in our state of Telangana, it is coming around 26 to 28 lakhs of the population are disabled. Out of this 26 to 28 lakhs of disabled, most of the percent of the disabled coming under the mentally challenged or intellectually challenged children. For these children, there are some few institutions are running with the support of Ministry of Social Justice, sir. Thank you for supporting our institutions, sir, from your ministry. And there is a request from our institution, sir. The age limit for these children is 23 years, sir. Because these children are not going to be the independent in their own life. Because I request you to just look into this to relax the age limit for the schools which are running under the DDR scheme. One item. The second one is there is one school for hearing impaired running in Telangana state. Only one school supported by the Ministry of Social Justice. In that school, there are 200 students are studying in Ellen Keller School for the college of the hearing impaired. There are only 50 children who are supported by the Ministry of Social Justice. I request you to look into the age criteria and relax the age criteria and support the rest of the 150 students of this college, sir. I thank you for all the friends who have participated today. Thank you all the friends for who are here. थैंक यू वेरी मच सर. रामदास साहब जी, एक रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं हमारा तरफ से एक एज रिलैक्सेशन के लिए और कुछ संस्था के लिए अब ग्रेनेड मिलने में बहुत मुश्किल भी हो रहा है और इसी में थोड़ा ध्यान देख के जितना जो साल में जो सपोर्ट मिलना है वही ये साल में सपोर्ट मिले तो और विकलांग बच्चों के लिए और सेवा अच्छा करने के लिए और ज़्यादा बच्चों के लिए करने के लिए हमको सुविधा मिलेगा. और हमारा स्टेट में 55 organizations working for the disabled, sir, different categories. After the division of the categories, now we are having 21 types of disabilities. In future, if we go for a census, the increase of the percentage may go up to the 7 to 8% even after the disabilities category, sir. Now, I request you to look into all these things and support all the organizations which are working in Telangana state and other states of our country. I thank Ministry of Social Justice and Empowerment for your kind support for all NGOs who are working in our country. Thank you, sir. Thank you very much. हमारा साहब को दिव्यांग से कल ही हुआ इंटरनेशनल डे पर डिसेबल्ड विज्ञान भवन में साहब राष्ट्रपति जी सभी लोग के पूरा सेलिब्रेशन किया. अभी साहब को हमारा दिव्यांग से एक सम्मान, ये छोटा सम्मान करना है साहब तुमको. ये स्पेशल चिल्ड्रन अभी हम के साथ के लिए साहब आशीर्वाद देना है. पूरा दिव्यांग के तेलंगाना नहीं है, पूरा इंडिया में दिव्यांग जन के लिए अभी साहब आशीर्वाद देते. अभी साहब का बात सुनाएंगे. तो आज यहाँ हैदराबाद में ऑल इंडिया डिसेबल्ड राइट्स फोरम, जो फोरम हमारे कोली नागेश्वर राव उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है.
जो डिसेबल लोग हैं उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं, उनके पास एबिलिटी होती है और मतलब वो शरीर से दिव्यांगजन हो सकते हैं, लेकिन वो मन से काम करने से वो डिसेबल नहीं होते हैं। इसलिए उनको माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिव्यांगजन नाम दिया है। और अरे ताली मत बजाओ, हाँ चलो हाँ। और कल ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से 50 लोगों को भारत के कोने कोने में काम करने वाले जो दिव्यांगजन लोग हैं, दिव्यांगजन के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, ऐसे लोगों का सम्मान कल माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से हुआ। और वहाँ मैं भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एमओएस के नाते, राज्य मंत्री के नाते, मैं भी दिल्ली के विज्ञान भवन में मैं मौजूद था। तो आज मैं दिल्ली से ही यहाँ हैदराबाद पहुँचा हूँ और हमारे जो सभी आपके जो वर्कर हैं, नाम आपने मुझे एक मेमोरेंडम दे दिया है। उस मेमोरेंडम में जो भी मांगे हैं, उस मांगों पर मैं मंत्रालय से बात करके आपको क्या मदद की जा सकती है, आपके डिमांड को कैसा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में ज़रूर मैं विचार करूंगा। और यहाँ आपके मधुसूदन रेड्डी जी, बी पापाराव, बी अनिल कुमार, चौधरी श्याम सुंदर, उमर खान पठान, ऐसे कई आपके एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद है। हमारे रिपब्लिकन पार्टी के परम शिवा नागेश्वर राव यहाँ मौजूद है। दूसरे भी हमारे बैगल नागेश्वर राव भी यहाँ मौजूद है। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रवि कुमार जी यहाँ मौजूद है। यहाँ गोरख पन्ना खान के लड़के यहाँ मौजूद है। हमारे आंध्रा के प्रेसिडेंट ब्रह्मानंद रेड्डी जी, जो अभी तिरुपति से वो जाकर आए हैं, और वो ब्रह्मानंद रेड्डी जी बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। रत्न प्रताप, ये भी आरपीआई की लीडर है। और आपको हार्दिक बधाई देने के लिए हम सब लोग इधर आए हैं। मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए विचारधारा के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, दलित समाज के लिए काम करती है, गरीब किसान के लिए काम करती है, खेत मजदूर के लिए काम करती है, दिव्यांगजन के लिए काम करती है। जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको आधार देने की बहुत बड़ी ज़रूरी है। दिव्यांगजन लोगों को पूरी मदद करने की आवश्यकता है और इसीलिए मेरे मंत्रालय ने एक स्पेशल सेक्रेटरी, दिव्यांगजन के लिए मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, लेकिन दिव्यांगजन के लिए स्वतंत्र एक आईएएस पद का जो सेक्रेटरी होता है, ये सेक्रेटरी हमने दे दिया है। और दिव्यांगजन के लिए हमारे महाराष्ट्र में एक अलग मंत्रालय भी शुरू किया है। महाराष्ट्र में अभी जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उन्होंने स्वतंत्र एक दिव्यांगजन डिपार्टमेंट शुरू किया है। और हर राज्य में भी इसी तरह का डिपार्टमेंट शुरू होना चाहिए,
इसके लिए यहाँ तेलंगाना में जो चंद्रशेखर राव जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनको भी मैं एक पत्र लिखूंगा और यहाँ एक अलग से दिव्यांगजन डिपार्टमेंट शुरू होना चाहिए। हर राज्य के मुख्यमंत्री को मैं लिखूंगा और हर राज्य में भी दिव्यांगजन के लिए अलग एक मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि देश भर में कम से कम 3 करोड़ से अभी तो 2011 के जनगणना के मुताबिक 2,68 लाख इतनी दिव्यांगजनों की संख्या है। लेकिन अभी 2021 का सेंसस हो जाएगा तो ये संख्या 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह मतलब दिव्यांगजन के लिए पूरी मदद करने का पेंशन की योजना हमारी है। दिव्यांगजन के लिए स्पेशल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। दिव्यांगजन के लिए एक सुगम्य भारत योजना है। दिव्यांगजन के लिए मतलब छोटे मोटे उद्योग शुरू करने के लिए बहुत सारी मदद करने की स्कीम है। और दिव्यांगजनों को अपने पैर पर खड़ा रखने के लिए हमारे मंत्रालय ने मतलब 2 दिन का जो मेला है दिव्यांगजन मेला जो है ये मेला इंडिया गेट पर रखा है और उसमें कम से कम देश भर के 150 स्टॉल उधर आए हैं। दिव्यांगजन अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारा साहित्य बनाते हैं, बहुत सारा साहित्य बेचते हैं और उनको पूरी मदद करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे मंत्रालय ने कोशिश की और 150 देश भर के 22 राज्यों के स्टॉल्स उधर है। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वो मेला वहाँ चलेगा। रोज कम से कम 15,000, 20,000, 30,000 लोग आते हैं और वहाँ देखते भी है, खरीदी भी, परचेज भी करते हैं। तो इसी तरह हर राज्य में भी इसी तरह की कोशिश हमारी रहेगी। तो इसी तरह मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो मेमोरेंडम आपने हमको दे दिया है उस पर ज़रूर मैं मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करके आपके डिमांड पर ज़रूर पॉजिटिवली विचार करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ दिव्यांगजन डे के अवसर पर मैं आप सभी दिव्यांगजनों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय तेलंगाना। ये स्पेशल पॉम्पलेट रिलीज कर रहा साहब, जोर से गाला देना है, సపట్లు కొట్టాలి అందరూ కూడా గట్టిగా సార్ చేతుల మీదుగా। ఇరింగే పిల్లల్ని వరుసగా ఇక్కడ పెట్టాలి। మనకి చెవుల మిషన్ని మంత్రి చేతుల మీదుగా ఇస్తున్నారు। దయచేసి ఇక్కడ పిల్లల్ని 5 మందిని తీసుకొచ్చి మిషన్స్ మన మధు
Subscribe to our channel, click the bell icon and select all.